Good evening, students. So, I think you are getting everything about the biomolecule chapter, especially in carbohydrates, and you have learned about the structure, classification. We are discussing about the chemical properties of glucose. Yesterday, we have explained about some properties of glucose, oxidation, reduction, and some reaction with like hydrazine and HCN. Now, very important and tough one, whatever I have given to you to do, that is reaction with phenylhydrazine. This is most important reaction of glucose, and it depends upon the open chain structure. So, how you will write the phenylhydrazine and how the phenylhydrazine react with less amount as well as in excess amount. Suppose you want to do the reaction with phenylhydrazine and glucose, and you are taking the limited or calculated quantity of phenylhydrazine. So, only one molecule of phenylhydrazine react and form glucose phenylhydrazone. अगर आप एक मालिक्यूल से ही रिएक्शन करेंगे तो आपको जो मिलेगा CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CHOH, whole 4 single bond CH2OH. So dear student, as you know, the formula of phenylhydrazine is NH2 NHC6H5. This is phenylhydrazine. So जब हम एक ही मालिक्यूल का यूज़ करते हैं तो इसका ये हाइड्रोजन H2 जो है इसके साथ में H2O बना के एलिमिनेट हो जाता है, और रिमेनिंग पार्ट्स जो बचा है यहाँ पे क्या बचेगा, NNHC6H5, ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच कर जाएगा. तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा CH डबल बॉन्ड NNHC6H5 means this H2 and this O will be removed. Similarly, you have done the reaction in aldehyde and ketone chapter also. Lower part of glucose, like that's mean these alcohol groups and this alcohol group will remain same. The compound which is formed, what is the name of this compound? This compound's name will be phenylhydrazone. phenylhydrazone. सो एक मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपली, और इसके पहले हमको लिखना पड़ेगा ग्लूकोज, क्योंकि हम ये ग्लूकोज का फिनाइलहाइड्राजोन बना है. अगर यहाँ पे एल्डिहाइड कोई और सा लेते हैं, सपोज कीजिए एसेटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सो नेम के आगे हम क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड फिनाइलहाइड्राजोन और एसेटल्डिहाइड फिनाइलहाइड्राजोन. एक मालिक्यूल के साथ फिनाइलहाइड्राजोन बनेगा. अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में फिनाइलहाइड्राजीन लेते हैं, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो फर्स्ट मालिक्यूल जो है आपका वो ग्लूकोज फिनाइलहाइड्राजोन बनाएगा. सिमिलरली, सो हम टेलिंग इन एक्सेस केस, एक्सेस ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन. Excess of phenylhydrazine means first molecule, then second molecule and third molecule. So dear student, very important product will form, that is yellow in color, that finally after the third molecule you will get osazone. How the reaction will take place, कैसे reaction करेंगे और कैसे कैसे फर्स्ट मालिक्यूल, सेकेंड मालिक्यूल और थर्ड मालिक्यूल में क्या क्या बनेगा. देखिए, फर्स्ट मालिक्यूल तो इसी तरह से बिहेव करेगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फिनाइलहाइड्राजोन. इन द सेकेंड केस, व्हेन वी विल टेक सेकेंड मालिक्यूल, सी हियर NH2 NHC6H5. So reaction will take place at the second carbon. So dear student, I have not explained here, not opened the structure. So what we have to do, we have to write the reaction again. हम इसको दोबारा से लिखना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर नहीं करके लिखा था, फोल्डेड फॉर्म में लिखा हुआ है.
ओपन स्ट्रक्चर में करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, देखिए CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH. These are 4 secondary alcohol group and CH2OH. फर्स्ट मालिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुई बिल्कुल वैसे ही कराएंगे, NH2 NH C6H5. सो क्या बनेगा, यहाँ से H2 रिमूव करेंगे, यहाँ से O रिमूव करेंगे और आप बनाएंगे CH डबल बॉन्ड NH C6H5. नाउ रिमेनिंग पार्ट जो नीचे बाकी के पोर्शन था वो वैसे ही कॉपी करेंगे, CHOH 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 4 times and at last CH2OH. सेकेंड मालिक्यूल के केस में यहाँ पे हमें वाटर रिमूव कर दिया है, -H2 को कर देंगे। सेकेंड केस में जब हम सेकेंड मालिक्यूल को लेंगे NH2 NH C6H5. सो सी स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंड नंबर कार्बन है इस पे एक H है एक OH है, इसमें से एक H हटेगा और ये जो NH2 ग्रुप है उसके साथ चला जाएगा। तो अगर NH2 में एक H जुड़ेगा तो बन जाएगा NH3, यानी ये NH यहाँ से NH2 हटेगा, यहाँ से H हटेगा और NH3 प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका C6H5NH और यहाँ से एक H जा चुका है, यहाँ पे अभी एक H और बचा है, एक H और निकलेगा तो वो यहाँ पे जा कर के C6H5NH2 कर देगा, इस NH को NH2 कर देगा, दैट्स मीन C6H5NH2। डियर स्टूडेंट, इस तरह से दो बाई प्रोडक्ट, एक तो अमोनिया और एक एनिलीन, ये बन जाएंगे और यहाँ से दोनों H हट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन रह जाएगा। सो व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है जो लिखा था ये वाला पोर्शन। और अब हम इसमें जो हटाने के बाद बचा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, 2 नंबर कार्बन ऐसे हो गया ये। अब बाकी के नीचे का हम 4 कार्बन्स जो हैं कॉपी कर देंगे, CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH. Its name is glucosazone, glucosazone. And then in the third molecule again NH2 NH C6H5. See here, this is the first molecule. In the first molecule glucose phenyl hydrazone will form, in the second molecule glucosazone, and taking this again, यहाँ पे देख रहे हैं फिर से C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और जब C डबल बॉन्ड O है तो ये उसी तरह से रिएक्शन करेगा जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था। यहाँ से O हटेगा, यहाँ से H2 हटेगा, H2O बना के रिमूव करेंगे -H2O, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा आपका NH C6H5 वो यहाँ पे डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स मीन यू विल गेट CH डबल बॉन्ड NH C6H5, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH C6H5 और नीचे सेम कॉपी करेंगे CHOH 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 and CH2OH. So this name is osazone. Osazone. This is yellow color precipitate. Dear student, what is the specialty of this compound? When you react glucose phenylhydrazine, you will get osazone and same product yellow precipitate, as well as
when you react with fructose and phenylhydrazine, so same product you will get finally. Okay student? So dear student, the next reaction is reaction with calcium hydroxide or alkali. जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। एक ही ग्लूकोज का OH ग्रुप उस पर रिएक्शन करता है। ग्लूकोज का फार्मूला हम लिखते हैं C6H12O6। अगर हम इसमें से एक OH ग्रुप को रिमूव कर लें तो एक O यहाँ से हटा दें, एक H हटा दें, तो ये बनता है C6H11O5 और उस OH को हम इस तरह से .OH करके लिख दें। ये अपनी कन्वीनियंसी के लिए लिख रहे हैं जिससे कि आपकी रिएक्शन करने में इजी हो रहे और आप जान पाएँ कि कैसे रिएक्शन हुई है। मीन्स ग्लूकोज के सिंगल OH ग्रुप को हम इंडिकेट करना चाहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH होल ट्वाइस, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे OH सिंगल बॉन्ड Ca सिंगल बॉन्ड OH। So water will be removed like this H and OH and remaining parts, that's mean C6H11O5 डॉट यहाँ पे O5 और ये O बच गया है O, देन Ca, यहाँ से ये H हट गया, ये OH हट गया, बचा CaOH plus H2O. Its name is calcium glucosate, calcium glucosate. So in this way, this reaction which is behaving like only single OH, एक ही OH पे रिएक्शन करेगी, वो रिएक्शन है जिसमें हमारा कंपाउंड बनेगा कैल्शियम ग्लूकोसेट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक आई थिंक ये थोड़ा टफ भी है आपके लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाउ द डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड द रिएक्शन में कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जब हम ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन करते हैं तो 12% HCl के साथ में हीट करना पड़ता है हमको, और वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से अगर आप करेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे कि वो रिएक्शन इजीली समझ में आए और जो प्रोडक्ट बने उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बने। तो प्लीज़ कंसंट्रेट योर माइंड हेयर। C single bond C single bond C, these are the 4 carbon of glucose, then OH and OH, and this is CHO. In this side H, that means start from here, CHO single bond CHOH single bond CHOH single bond CHOH single bond CHOH single bond CH2OH। फिर से देखिए हमने किस तरह से बनाया है इसको स्ट्रक्चर को। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH single bond CHOH single bond CH2OH. Now you can count, there are 6 carbon, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hydrogen and oxygen 1 2 3 4 5 and 6. सो इसका हाइड्रेशन अगर हम ग्लूकोज को 12% HCl के साथ में 12% HCl के साथ हीट करते हैं, सी स्टूडेंट्स कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ये है H आपका, ये है OH, ये आपस में
H2O बनाएगा 1H2O, देन अगेन HOH 1H2O, एंड दिस OH एंड OH मिलके एक H2O बना देंगे और एक और रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में O के साथ ये दोनों बॉन्ड को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से OH हट गया, यहाँ से H हट गया, तो ये वाला बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड भी डबल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये यहाँ से O से कनेक्ट हो जाएगा। सो नाउ योर स्ट्रक्चर विल बी C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C O, like this. One H is left here, that's mean H CHO, and this side CH2OH. I think you have understand how we have drawn the structure, and 3 molecules of water will be removed. Its name is 5-hydroxymethyl furfural. 5-hydroxymethyl furfural. अभी यहाँ पे रिएक्शन रुकी नहीं है, फिर से समझिए आप, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। CHO CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो ये कन्वीनियंट वे है कि इस तरह से आप यहाँ पे बनाएं, तो आपको बनाने में इजी रहेगा। ये H2O निकल गया, OH मिलके H2O निकल गया, और इन दोनों से H2O निकल गया और एक O बचा, ये आपका कंपाउंड बना। अगर इस कंपाउंड को हम HCl के साथ ट्रीट कर देते हैं तो ये 2 एसिड्स बनाते हैं, और दोनों एसिड, एक तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और एक एसिड जो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH2 COOH प्लस HCOOH। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा 2 एसिड बना, एक 5 कार्बन का एसिड बना 1 2 3 4 5, और एक एसिड बना जो आपका ये मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड। डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड है, इसका नेम L से स्टार्ट होता है। सो यू हैव टू राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस एसिड। आई थिंक यू हैव गॉट अबाउट द reaction related to the open chain structures. These were the reaction which involve in the glucose, and the topic of the open chain structures reaction is finished now. Dear student, in the next video we will discuss about the reaction involving in the cyclic chain. Okay, good night. Good evening student.